it is of two types. Orbital overlapping is of two types. First one is axial overlapping. Okay, axial overlapping will always lead to the formation of sigma bond. Okay, this orbital can be of SS overlapping, SP overlapping, or PP overlapping. Second type of overlapping is lateral overlapping. Now, lateral overlapping will lead to the formation of pi bond. Okay, these will be of PP sideways overlapping, then D and P sideways overlapping, and then DD sideways overlapping. I will tell you how these overlapping looks. Okay, write down this. Okay, now let's talk about axial overlapping. That means sigma bond. So let's first write down the definition of sigma bond. In this, write down this type of covalent bond is formed by the end to end, or you can say that head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called as head on overlap or axial overlap. Fine, draw this. Sorry, write down this. Okay, so now first is your SS overlapping. So whenever 2s orbital forms the bond, then it is known as SS overlapping. So in this case, there is overlap of two half filled s orbitals along the internuclear axis. Okay, so what happens is, this is the s orbital of one atom, and when it combines with the s orbital of another atom, now what does this mean? Along the internuclear axis, that means this is the axis.
And since it is an s orbital, so no axis matters actually. X axis, y axis, z axis, every axis is same. So now when they combine in this particular manner. So this area where this overlapping is happening, it is known as bonding. So bonding is never, जैसे हम इमेजिन करते हैं ना एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है बीच में, वही बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग नहीं होती. इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, और इस ओवरलैप्ड एरिया में ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा. देन इट इज नोन एज दिस थिंग बॉन्डिंग. इज इट क्लियर? Okay. Next is S or P overlapping. In this type of overlap occurs between half filled s orbitals of one atom and half filled p orbital of another atom. ठीक है, तो लेटरल ओवरलैपिंग होगा. ये मान लो मेरे पास s ऑर्बिटल है, दिस इज s ऑर्बिटल, इसको हम एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराएंगे, दिस इज p ऑर्बिटल. तो हमको किस तरीके से ओवरलैपिंग दिखेगी, ये हो गया s, ये हो गया p. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस शेडेड एरिया में, ओवरलैप्ड एरिया में रहेगा. so this is sp overlap. Third is your pe overlapping. This type of overlap takes place between half filled p orbitals of the two approaching atoms. So these are two, this thing, and ओवरलैपिंग इसी एक्सिस में होगी. ठीक है, दिस एक्सिस, उनका एक्सिस सेम होना चाहिए, चाहे दोनों एक्स एक्सिस में हो या फिर दोनों वाई एक्सिस में हो, चाहे जेड एक्सिस में हो, बट एक्सिस शुड बी सेम एंड only this kind of overlapping should be there. So like this, p orbital will be showing this overlapping. This is p orbital, p orbital, pp overlapping, pp overlapping. Write down this. Done writing?
Okay, so all these are the type of bonds formed here is all sigma everywhere when this kind of overlapping is happening. Okay, so second type is your lateral overlapping, which is leading to the formation of pi bond. So lateral overlapping, and it leads to the formation of pi bond. In this, write down, in the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axes remain parallel to each other. ओवरलैपिंग तब करते हैं जब एक दूसरे से पैरेलल होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द internuclear axis. This is the sign for perpendicular. Okay, maths में you will come across if you haven't come across till now. The orbitals formed due to sideways, write it sideways, due to the overlap of as I was saying, the orbitals formed due to sidewise overlapping consists of two saucer type charged clouds above and below the plane of the participating. ठीक है, तो ये लिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, पहले लिखो फिर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगी. डन. ओके, चलो. सो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसा भी हो, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग ओनली. ठीक है, अब क्या एस ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है, ये बताओ पहले मुझे. क्या एस ऑर्बिटल में पॉसिबल है ये? नो, एस ऑर्बिटल में दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज उसके सारे, वो तो स्फेरिकल है, उसका सारा एक्सेस एंड एवरीथिंग इज सेम है. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर s orbital does not form pi overlapping. So overlapping किस में होगा? pi टाइप का overlapping. It will be for p orbital and d orbital. अब p orbital में कैसे होगा? ये अगर हमने ले लिया एक p orbital, ये overlap कर रहा है with another p orbital, और ये देखो एक दूसरे से पैरेलल है. ठीक है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बनाया, बट स्ट्रेट बनाना है इसको. ठीक है, तो जब ये ओवरलैप करेंगे, सो दे विल बी लाइक दिस. सो ओवरलैपिंग एक इस एरिया में हुई और एक इस एरिया में हुई, और
ये इनका एक्सिस था, और ये मान लो अगर प्लेन है इनका इंटर न्यूक्लियर प्लेन, तो आपको ओवरलैपिंग, एक ओवरलैपिंग इस प्लेन के ऊपर दिख रही है और एक ओवरलैपिंग इस प्लेन के नीचे दिख रही है। दिस इज योर पी पी ओवरलैपिंग बट साइडवेज। सो अल्टीमेटली हम जब इसको ड्रॉ करते हैं, कई बार ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ओवरलैपिंग ऊपर दिख रही है दोनों का कंबाइन करके, एक ओवरलैपिंग नीचे दिख रही है दोनों का कंबाइन होके। तभी आपको यहाँ ऊपर अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको ये लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू sidewise overlapping consists of two saucer type charged clouds above and below the plane। तो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना कि यहाँ बीच में तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे? नहीं, ऊपर वाला क्लाउड और नीचे वाला क्लाउड जो भी ऑर्बिटल है, दोनों में मिला के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब वो कहाँ है किस पर्टिकुलर टाइम पे, वो हमको नहीं पता, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी डोंट नो वेयर द इलेक्ट्रॉन इज, बट इसी एरिया में होगा, दैट वी नो। इज इट क्लियर? So this is the sideways overlapping of p orbitals. This is p orbital and this is p orbital। ऐसे ही d orbital की भी बात कर लेते हैं। d orbital हमारा इस तरीके से था, एक और d orbital से इसको ओवरलैप करेंगे, so it will be like this। तो यहाँ पे अगेन अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन आपको क्लाउड मिल गया। ठीक है, ये जो हम मान लेते हैं कि जो हमारा अब डी, हमने डी के ऑर्बिटल्स इफ यू रिमेम्बर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किए थे, मान लेते हैं डी वाई जेड है ये, और ये भी डी वाई जेड। और ये कंबाइन करके यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, one above the plane and one below the plane। So this is known as d pi overlapping। This can also called as p pi overlapping because ultimately pi orbital ही फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ड्रॉ करो ये। Done? Okay, now let's talk about the strength of sigma bonding and pi bonding। ये किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सिग्मा बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का? व्हाट डू यू थिंक, विच इज गोइंग टू बी मोर stronger in nature? What are your answers? Tell me। चलो लिखो। Basically, the strength of a bond depends upon the extent of overlapping,
है ना, कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उसी पे उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है. In case of sigma bond, the overlapping of orbitals takes place to a larger extent. Hence, it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. ओके, इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप दो ऑर्बिटल्स को इस तरीके से कंबाइन कर रहे हो तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो पाएगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो पाएगी. इवन आफ्टर ओवरलैपिंग इट विल लुक लाइक दिस. पूरा ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा. बट जब पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करते हो तो ये जो ओवरलैप हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू जितना सिग्मा बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग पे होता है. ओके, आई डोंट नो, मे बी मैं जो ड्राइंग किया है मैंने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रहा है नीचे भी ओवरलैपिंग हो रहा है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा है. नहीं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हम किसी भी एक साइड से ही चेक करते हैं. नेक्स्ट राइट डाउन हियर फर्दर, it is important to note that pi bond between two atoms is formed in addition to a sigma bond. ठीक है, पाई बॉन्ड, अकेला पाई बॉन्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा. अगर पाई बॉन्ड है तो वो सिग्मा के साथ ही होगा. पहले सिग्मा बना है और फिर पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड अपने आप, अगर आप ये बोल दो कि सिर्फ किसी दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, कभी नहीं होगा. उसमें अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा ही होगा. दो पाई बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होगा ही होगा. ओके, सो नेक्स्ट हियर राइट डाउन, इट इज ऑलवेज present in the molecules containing मल्टीपल बॉन्ड. ओके, तो अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड आपको दिखेगा फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी वहां पे होगा ही होगा. लिखो ये. डन राइटिंग? ओके, ओके, नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट लिखो. द वेरियस arrangements of s and p orbitals resulting in
positive, negative, and zero overlap are depicted in the following figure. अच्छा, what does this mean is कि ओवरलैपिंग जो है वो भी तीन टाइप की हो सकती है, एक और तरीके से अगर हम उसको सेग्रीगेट करना चाहें. फर्स्ट इज योर पॉजिटिव ओवरलैप, सेकंड वन इज योर नेगेटिव ओवरलैप. नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है कि वो ओवरलैप नहीं करेगा. अच्छा, वन सेकेंड एवरीवन. ओके, सो जैसे हम ओवरलैप कर रहे थे पी और जेड के बीच में, है ना, ये एक्सिस है यहाँ पे, एंड दूसरा अगर हम ले लें यहाँ पे ये, तो मान लो हमने ये जेड एक्सिस लिया हुआ है, तो ये भी पी जेड है और ये भी पी जेड है, तो इनके बीच में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है. अब आपको पता है कि एक्सिस में एक ये वाला पॉजिटिव साइड होता है, ये वाला नेगेटिव साइड होता है, यस और नो. एक्सिस में पता है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा ग्राफ्स में, और नीचे नेगेटिव होता है. तो अगर मैं यहाँ पे लोब बनाऊंगी तो लोब का एक फेज पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा फेज नेगेटिव हो जाएगा, है ना. तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव. तो जब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करता है देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ओवरलैप. ओके, पॉजिटिव ओवरलैप एस और पी के बीच में भी हो सकता है. ये इसका पॉजिटिव है और एस का पूरा ही एक पॉजिटिव होगा, वहाँ नेगेटिव नहीं होगा, या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा एस, या पूरा का पूरा नेगेटिव होगा. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ, मान लेते हैं ये है पी जेड और ये है एस, तो इनके बीच में जो ओवरलैप हुआ वो भी पॉजिटिव है. मान लो मैं अब लेटरल ओवरलैपिंग की बात कर रही हूँ, लाइक दिस. तो ये भी पॉजिटिव और नीचे वाला ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. सो सेम साइड अगर सेम एक जैसा ओवरलैप हो रहा है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, सो देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग. तो मान लेते हैं ये भी पी एक्स है और ये भी पी एक्स है. ऐसे आप पी वाई भी कर सकते हो. पी वाई के लिए ओवरलैपिंग कैसे होगा, लाइक दिस. इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव. दिस इज ऑल्सो पी वाई, दिस इज ऑल्सो पी वाई. ओके, दूसरा एक और पॉजिटिव ओवरलैपिंग जो हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस. ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, और एस लिया आपने जो खुद भी पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी. सो दिस इज योर पी एक्स और एस. सो इस टाइप का अगर ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है तो इट इज नोन एज पॉजिटिव. अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ऐसा लोब्स में ऐसे लिखा नहीं होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको जस्ट समझना है कि फेजेस हैं ये, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज. ओके, दैट्स इट. और जब हम नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव में ओवरलैपिंग है, नहीं. हम इसको ऐसे भी कर सकते, जैसे ये लेटरल ओवरलैपिंग था ना, मैं अगर इसको ऐसे करती, ये नेगेटिव, एक सेकेंड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉजिटिव ओवरलैपिंग ओनली. क्यों पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि अगर फेजेस सेम है तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. ओके, तो हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग इस वजह से नहीं बोल रहे कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स हो रहे हैं. पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कि ओवरलैपिंग हो रही है, फिर चाहे वो दो पॉजिटिव फेज पे हो या दो नेगेटिव फेज से हो, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल. इज इट क्लियर? लेट मी नो. ओके, अब नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही. और ओवरलैपिंग अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि उनके फेजेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ओके, तो अगर मैं इसका पॉजिटिव फेज ले लूँ और इसका नेगेटिव फेज ले लूँ,
in this case there is no overlapping. So this is a type of negative overlapping. इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेजेस के रेस्पेक्ट में क्या होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये एस का पॉजिटिव है। देन ऑल्सो देयर इज अ नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर लेटरल ओवरलैपिंग हम करा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, देन दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर ये तो हमने पी एक्स और पी एक्स किया, अगर पी वाई अगर मुझे करना है, दिस इज पी वाई अगेन, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। So all these types will come under negative overlapping because overlapping उसमें होगी ही नहीं, बट अगर मुझे डायग्रामेटिकली शो करना है तो मैं इस तरीके से शो करूंगी। देन देयर इज जीरो ओवरलैपिंग। अच्छा, अब जीरो ओवरलैपिंग क्या है? जीरो ओवरलैपिंग मतलब दोनों का एक्सेस ही एकदम अलग हो। ओके, देन इट इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। जैसे कि ये ले लो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, दिस इज पी एक्स, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, बट दिस इज पी वाई। तो आप खुद ही इमेजिन कर लो, एक एक्स एक्सेस, एक एक्स एक्सेस पे है, एक वाई एक्सेस पे है, तो क्या ओवरलैपिंग होगा? क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? दोनों का एक्सेस ही अलग है, तो वो कभी ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे। कुछ भी पॉसिबिलिटी, कुछ भी कर लो आप, वो कभी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज जीरो ओवरलैपिंग। राइट डाउन दिस। Done writing, and if you have any doubt here, ask me. Okay. नोट डाल के लिखो यहाँ पे। Lobe of, first point, lobe of atomic orbitals which does not involve in overlapping become short after bond formation. So what does this mean? अगर मेरे पास दो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं लाइक दिस, तो ये ओवरलैप करके एक इस तरीके सा और फॉर्म करते हैं, दोनों का पॉजिटिव फेज कंबाइन हो रहा है, तो दे फॉर्म लाइक दिस, थोड़ा सा उनका शेप बदल जाता है। अगर p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, इसका प्लस, ये नेगेटिव, तो व्हेन दे कंबाइन तो पूरा सेंटर वाला पोर्शन ओवरलैप करके ऐसे हो जाएगा, और ये साइड वाले छोटे हो जाएंगे, प्लस प्लस, और ये नेगेटिव और नेगेटिव। So this is what it is saying. Lobe of atomic orbitals which does not involve in overlapping become short after formation. तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? जैसे मान लो
एक P और एक S ओवरलैप कर रहा है, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, तो ये P का ये छोटा हो जाएगा और दिस साइड विल बिकम होल बड़ा, P और S दोनों इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे. इज इट क्लियर? Okay, second point, write down atomic orbitals having different orientation of their lobes do not form any type of covalent bond. अगर ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन इज टोटली डिफरेंट तो उनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने आपको ये बताया, जीरो ओवरलैपिंग वाला केस. थर्ड पॉइंट, s orbital and d orbitals. एक्सियल सेट कौन से हैं डी ऑर्बिटल्स के? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ओके, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. अच्छा, अभी पहले मैं ये बता दूं डी के कौन कौन से सेट हमने पढ़े थे. 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड. ये जो आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर नॉन एक्शियल. नॉन एक्शियल मीन्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहे हैं. बाकी 2 ऑर्बिटल्स जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दीज आर योर एक्शियल ऑर्बिटल्स. या इफ यू रिमेंबर हमने कैसे ड्रॉ करे थे, लाइक दिस. ये इन बिटवीन आ रहे हैं सारे. मान लो ये एक्स और वाई है, ये एक्स और जेड है, देन ये है वाई और जेड. तो ये जो तीनों हैं इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, सो दीज आर नॉन एक्शियल. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा था, एक्स और वाई था लाइक दिस, तो ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. सो दिस इज योर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और डी जेड स्क्वायर कैसे था, हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था, लाइक दिस. दिस इज डी जेड स्क्वायर. तो ये कैसे हो गए, एक्शियल हो गए. तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो भी आपके एक्शियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ एस ऑर्बिटल कभी भी कंबाइन करके पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. राइट डाउन दिस. Okay. Here write down for this non-axial one. In this write down pure form of d orbital of non-axial set. Non-axial sets हैं आपके पास. They can form either pi bond और डेल्टा बॉन्ड. ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या फिर डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करेंगे मोस्टली. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं करते. एक्शियल सेट के लिए क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ एक्शियल सेट can form
ईदर सिग्मा बॉन्ड, जो कि थियोरेटिकली है, मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, एंड डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर डेल्टा फॉर्म डेल्टा बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। राइट डाउन दिस। नेक्स्ट पॉइंट, any d orbital can form sigma bond by undergoing hybridization। ठीक है, अभी के लिए जस्ट लिख लो ये पॉइंट। हाइब्रिडाइजेशन वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा देन आई विल लेट यू नो, अभी जस्ट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री रोटेशन of surrounding atom is possible around sigma bond, whereas it is restricted in the presence of what does this statement is saying कि अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन है वो पॉसिबल होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो घूम सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसके अलोंग बॉन्ड रोटेशन टेक प्लेस कर सकता है, कंपाउंड आपका घूम सकता है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, बिकॉज वो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन इज पॉसिबल। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। बट अगर ऐसे ही मैं ये कंपाउंड ले लूँ जहाँ पे अब पाई बॉन्ड आ गया, तो आपको पता है अगर दो बॉन्ड आ रहा है तो एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई। तो अभी इसके अलोंग अगर मैं रोटेशन करना चाहूँ दैट इज नॉट पॉसिबल, आप कंपाउंड को घुमा नहीं सकते हो। तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग कंपाउंड अपना आराम से घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, और अगर कहीं पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो देन वहाँ पे रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? लिखो ये जल्दी से। 6 पॉइंट इज कि डेल्टा बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, सो delta bond, in this it is formed by four lobe interaction of half filled d atomic orbital of bonded atoms। ठीक है, जब डी ऑर्बिटल के जो डी ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ आमने सामने कंबाइन होते हैं, उनके चारों लोब्स इंटरैक्ट करते हैं, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। सो लाइक दिस, जैसे हमने ये ले लिया और ये एक और हो गया सेकेंड डी ऑर्बिटल,
ये लेट्स से वाई एक्सिस है दोनों का ही, तो जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आप इमेजिन कर लो दोनों आमने सामने एक दूसरे से, और उनके लोब्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। और ये इसका मतलब ये नहीं कि चार लोग कंबाइन कर रहे हैं तो चार बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, नहीं, वो सब हम एक ही मानेंगे, उसको हम एक ही बॉन्ड कंसिडर करेंगे। इज इट ओके? ओके, डन राइटिंग? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमने, तो अगर पी पी ओवरलैपिंग से आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसमें ज़्यादा होता है। देन एस और पी ओवरलैपिंग, और देन एस और एस ओवरलैपिंग। राइट डाउन दिस। In this, write down, if the energy level is same, then overlapping will be more. Thus, bond strength will be more. ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये मान लो 2p है, एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, 2p की बात हो रही है, और ये भी 2p है, तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो उस केस में जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर मान लो एक मैं 2p ले रही हूँ और एक मैं 3p ले रही हूँ, तो 3p का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होगा, तो उनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो कम होगा, तो उसकी वजह से उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो अगर एनर्जी लेवल सेम है तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग, दैट मीन्स मोर स्ट्रेंथ। एनर्जी लेवल डिफरेंट है, ओवरलैपिंग होगा बट इट विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। राइट डाउन दिस। ओके, चलो, आज का क्लास वी विल बी फिनिशिंग हियर ओनली।